کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اور بات ہوگی۔ اور ہمارے بعد ایک شاعر اور بھی ہیں جو ابھی آرا سے آ رہے ہیں، جن کا نام شاعر اسلام محمد ندیم اختر صاحب ہے۔ بہت ہی جلد وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے، بس مختصر انداز میں سنیے۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لیے پڑھیے، رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کا چند اشعار سماعت کیجیے۔ سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھیے، آپ لوگ صرف پڑھیے ہمارا نبی، انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور اس شعر کو دیکھیے، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت آگے کیا لکھتے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے دو بوند ہے
کوثر و سلسبیل، جس کے دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ اور اس شعر کو دیکھیے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، یعنی جو نبی آئے ایک دور کے لیے آئے، اور میرے نبی جب تشریف لائے تو ایک دور کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے آئے۔ اور میرے نبی تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام رسولوں کا رسول ہے۔ شاعر کہتے ہیں، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ کسی کی بھی بارگاہ میں جائیے، کسی بھی انسان کے پاس جائیے، چاہے وہ اپنے وقت کا راجہ مہاراجہ کیوں نہ ہو، آپ ایک بار جائیں گے، دو بار جائیں گے، آخر میں وہ کہہ دیں گے کہ بار بار میرے پاس کیوں آتے ہو؟ لیکن میرے نبی کا در وہ در ہے کہ تم ایک بار نہیں بار بار جاؤ، ہر بار عطا کرتے ہیں اور میرے نبی خوش ہو کے دیتے ہیں۔ اور شاہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے
ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. آئیے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ میرے بندے ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اے لوگو لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے لیکن ذکر نبی نہیں مٹ سکتا ہے ذکر خدا بھی نہیں مٹ سکتا ہے اس لیے کہ خدا فرماتا ہے ہم نے ہی اتارا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے لوگو پوری دنیا مل کر کے یہ فیصلہ کر لے ہمیں کچھ نہیں بولنا ہے لیکن پھر بھی نبی کا ذکر خاموش نہیں ہوگا پھر بھی قرآن کا ذکر خاموش نہیں ہوگا. اے میرے دوستو خدا فرماتا ہے ہم نے ہی اتارا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کی ذکر کو اتارا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم نے ذکر کو اتارا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے لوگو کوئی دین کا کام کرے یا نہ کرے کوئی اس پر چلے یا مٹانے کی کوشش کرے مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا مگر نبی کا ذکر نہیں مٹایا جائے گا قرآن کا ذکر نہیں مٹایا جائے گا. جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے. ایک مرتبہ پہلے ایک واقعہ سنیے پھر انشاءاللہ اس آیت میں روشنی ڈالوں گا. ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک جوگی آیا اور وہ جوگی کیسا تھا بڑی محنت کر کے اس نے رکھا تھا اتنی محنت کیا تھا وہ جوگی کہ جس آدمی کو وہ باہر سے دیکھتا تھا اس کے اندر کو بھی اسی طرح دیکھ لیتا تھا یعنی اس کے سامنے جو ہوتا اس کے اندر کو بھی وہ دیکھتا باہر کو بھی دیکھ لیتا. ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں وہ جوگی پہنچا ہے جو جوگی پہنچا ہے اور کبھی خواجہ غریب نواز کے دائیں طرف گھومتا ہے کبھی بائیں کبھی سامنے کبھی پیچھے یعنی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اب یہ جوگی آیا ہے اور چکر لگانے لگا. میرے خواجہ فرماتے ہو جوگی یہ چکر کیوں لگاتے گھوم کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہے لیکن آپ کے اندر نور ہی نور دکھائی دیتا ہے آپ کے اندر نور ہی نور دکھائی دیتا ہے اسی سے میں حیرت میں ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اچھا دیکھ لیا تو آؤ بیٹھو لیکن اس نے کہا حضور بیٹھوں کیسے آپ کے اندر جو نور چمک رہا ہے نا وہ تو آپ انسان ہے میں مانتا ہوں کہ انسان ہے اور آپ کے اندر نور چمک رہا ہے اس نور میں ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں وہی مجھے ہیبت میں ڈال رکھا ہے. خواجہ غریب نواز نے فرمایا کیا دیکھ رہے ہو تم میرے اندر؟ کہا کہ حضور آپ کے اندر جو ہی میں نے دیکھا آپ کا دل جو ہے نور جیسا چمک رہا ہے لیکن آپ کے دل میں ایک کالا سا دھبا لگا ہے اسی دھبے کو دیکھ کر کے میں پریشان ہوں کہ سارے بدن میں نور چمک رہا ہو اور ایک چھوٹا سا جو دھبا ہے اس دھبے سے میں پریشان ہو گیا ہوں. اور حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے جوگی اب تم نے دیکھ لیا ہے نا آؤ بیٹھو سامنے ابھی یہ داغ مٹ جائے گا. وہ جوگی کہنے لگا حضور یہ داغ کیسے مٹے گا؟ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں تو کلمہ پڑھ لے
ये दाग मिट जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया तू कलमा पढ़ ले, ये दाग मिट जाएगा। जोगी, उस जोगी ने कहा हुजूर दाग आपके दिल पर लगा है, धब्बा आपके दिल पर है, और मैं कलमा पढ़ूं तो आपका धब्बा मिट जाएगा, ये कैसे हो सकता है? दाग आपके पास है और कलमा मैं पढ़ूं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ए जोगी ये बता अभी वो दाग तुम्हें दिख रहा है कि नहीं? उस जोगी ने कहा हाँ हुजूर वो दाग तो मुझे दिख रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कलमा पढ़ लोगे फिर भी दिखेगा? उसने कहा हुजूर कलमा पढ़ लूंगा फिर भी दिखेगा। तो गरीब नवाज फरमाते हैं कलमा पढ़ ले, उसके बाद फिर देखना कि वो दाग तुम्हें नजर आता है कि नहीं। उस जोगी ने कहा हुजूर मैं कलमा पढ़ता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही जोगी ने कलमा पढ़ा है ख्वाजा गरीब नवाज के दिल से वो दाग फुर से गायब हो जाता है, फुर से उड़ जाता है। वो जोगी हैबत में रह गया, परेशानी में मुब्तला हो गया। ए ख्वाजा गरीब नवाज दाग तो आपके दिल पे लगा था, कलमा मैंने पढ़ा है, आखिर राज क्या है कि मेरे कलमा पढ़ते ही वो धब्बा खत्म हो गया है, वो निशान खत्म हो गया है। गरीब नवाज फरमाते हैं ओ जोगी सुनो सुनो, वो दाग जो तुम्हें नजर आ रहा था असल में वो दाग मेरे दिल पर नहीं था, बल्कि तुम्हारे दिल में कुफ्र का दाग लगा था, कुफ्र का धब्बा लगा था। और जो ही तूने कलमा पढ़ा वो दाग मिटा, अब तुम्हें वो दाग नजर नहीं आता है। अब जोगी कहता है हुजूर कुफ्र का धब्बा तो मेरे दिल पे होना चाहिए, लेकिन आपके दिल पे क्यों लगा था, आपके सामने क्यों लगा था? हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ओ जोगी तुम क्या समझते हो कि तुम सिर्फ ख्वाजा के सामने बैठे हो? नहीं नहीं नहीं, तुम ख्वाजा के सामने नहीं बल्कि तुम एक आईने के सामने हो, और आईने पर नजर पड़ी है, तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाई दिया है। जब तुम कुफ्र में था दाग दिखाई दिया था, धब्बा दिखाई दिया था, और कलमा पढ़े हो वो दाग मिट गया है। अब तुम्हें वो धब्बा नजर नहीं आता है, अब तुम्हें वो दाग दिखाई नहीं देता है। असल में मैं एक आईना हूं, उस आईने के सामने तुम बैठे हो, तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। वो जोगी कहता हुजूर कमाल की बात है, कमाल की बात है, आपके पास जो ही मैंने आया अल्लाह ने मुझे वो इनाम दिया है, वो इनाम दिया है कि अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। शायर कहते हैं ख्वाजा का हर दीवाना खोया खोया रहता है, ख्वाजा का हर दीवाना खोया खोया रहता है। जिस जानिब भी देखिए चर्चा है अजमेर का, आप जिधर भी जाइए। आज ख्वाजा गरीब नवाज का ये उर्स का महीना है, कुछ दिन पहले छठी शरीफ थी, उसमें लोग पहुंचे थे, अपने भी पहुंचे थे, बेगाने भी पहुंचे थे, अपने भी लोग पहुंचे थे और गैर भी पहुंचे थे, और सबकी जबान पर एक कलमा थी और यही कलमा था। लोग कहते थे ख्वाजा हम जानते हैं मिलेगा तो आपके आस्थाने से मिलेगा, मिलेगा तो आपके दर से मिलेगा, और ख्वाजा आपके दर पे आ गए हैं। जब तक मिलेगा नहीं हम वापस जाने वाले नहीं है, जब तक मिलेगा नहीं हम वापस जाने वाले नहीं है। ये कलमा अपने भी कह रहे थे, गैर भी कह रहे थे, और गैर यही कह रहे थे ख्वाजा हम भी जानते हैं कि लोग आपकी बारगाह में आते हैं, बड़ी मन्नत लेके आते हैं, बड़ी तमन्ना लेके आते हैं ख्वाजा, इसलिए आज आपके सामने आपके दरबार में मैं भी आ गया हूं ख्वाजा, आज हमें भी दिला दीजिए। ए मेरे दोस्तों, जब तमन्ना पूरी होती है किसी की, जब किसी का आरजू पूरा होता है ख्वाजा गरीब नवाज के दर से, फिर वो दीवाना मस्ताना वार झूमता है और अपने सर पे फूलों का डाली सजाता है, माला का डाली सजाता है, और चादरों को अपने सर पे रख करके ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने में और घूमते हैं और यही कहते हैं सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाना कहाँ जाते। और हमें
اور ہمیشہ بھیک تو ہمیں اسی چوکھٹ سے ملتی ہے، ہم اپنی دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ میرے دوستو، جب خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ سے کسی کی تمنا پوری ہوتی ہے، اپنے سر پہ صحرا سجاتا ہے، اپنے سر پہ چادروں کی ڈالی کو سجا لیتا ہے اور خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے اور زبان حال سے یہی کہتا ہے، سنانے اپنے بربادی کے افسانے، خواجہ ہم کہاں جاتے، تیرے در کو چھوڑ کے میرے خواجہ ہم کہاں جاتے۔ تو میرے دوستو، خواجہ غریب نواز عطا رسول کا وہ آستانہ ہے، وہ آستانہ ہے کہ اپنے بھی لوگ پہنچتے ہیں اور غیر بھی پہنچتے ہیں، اور ہندوستان کے باشندہ تو خوب وہاں پہنچتے ہیں تو بدیش کے لوگ بھی آ کے تمنا کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سب سے اونچا ہند میں جھنڈا ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا، سارے ہندوستان پر سایہ ہے اجمیر کا، ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر میں، ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہے اجمیر کا، چپا چپا جنت کا ٹکڑا ہے اجمیر میں، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا۔ تھوڑا آواز بڑھاؤ۔ پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا، بزم میں بازاروں میں گلیوں میں صحراؤں میں جس جانب بھی دیکھیے چرچا ہے اجمیر کا، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، خواجہ کا ہر دیوانہ کھویا کھویا رہتا ہے، پل پل نغمہ جھوم کر گاتا ہے اجمیر کا، اور خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ، خواجہ کے دربار میں اپنا ہو یا بیگانہ، سب کو دیتا ہے ایسا داتا ہے اجمیر کا۔ آج بھی خواجہ غریب نوازتے ہیں، لینے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اگر دینے پہ خواجہ غریب نواز آتے ہیں تو لینے کے لیے قطب الدین بختیار کاکی کا طریقہ ہونا ضروری ہے۔ خواجہ غریب نواز آج بھی نوازتے ہیں، لینے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اورنگزیب کے دور میں ایک نابینا شخص تھا، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں خواجہ غریب نواز کے در پہ آ کے کہتا تھا، اے میرے خواجہ اے میرے خواجہ آنکھ دلا دے، آنکھ دلا دے۔ کئی دن تک کہا لیکن آنکھ میں روشنی نہیں ملی، آنکھ نہیں ملی۔ ایک دن اورنگزیب کا گزر ہوتا ہے، اورنگزیب کہنے لگا، او شخص تو کیا مانتا ہے بار بار؟ اس نے کہا، حضور میں خواجہ غریب نواز کے در پہ کئی دن سے آتا ہوں اور اپنی آنکھ کے لیے دعا مانگتا ہوں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آنکھ میں روشنی نہیں آتی ہے۔ حضرت اورنگزیب نے کہا، او مانگنے والا شخص سن لو، میں یہاں سے وہاں جاتا ہوں اور وہاں سے واپس آتا ہوں، تب تک تو خواجہ غریب نواز سے اپنی آنکھ میں روشنی کی فریاد کر لو اور روشنی مانگ لو۔ اگر آنکھ میں روشنی نہ ملی اور میں وہاں سے واپس آ گیا
तब तक तुमको अगर आंख में रोशनी ना मिली तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी गर्दन जिस्म से अलग कर दूंगा, तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, और मैं यहां से कह के फला जगह जाता हूं, वहां से वापस आऊंगा, अगर आंख में रोशनी वापस ना आई तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये कह के औरंगजेब चले गए हैं। अब इस शख्स ने रोना शुरू किया है, इस शख्स ने परेशानी के आलम में मुब्तला हो गया है। अब ये दीवाना झूमने लगा है, ये दीवाना मस्ताना वार होके कहने लगा, ए ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक तो मैं मांग रहा था, अपनी आंख मांग रहा था, लेकिन अब तो जान की बात आ गई है। औरंगजेब जैसा जिद्दी बादशाह कह के गया है कि आंख में अगर रोशनी ना मिली मैं वापस आ गया, अब भी तुम अंधे रह गए तो मैं तुम्हारे जिस्म से सर को अलग कर दूंगा। ए ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक तो मैं आपसे सवाल कर रहा था, आंख में रोशनी दे दे, रोशनी दे दे, लेकिन अब तो जान की बात आ गई है। ए ख्वाजा, अगर कुछ ही देर में आंख में रोशनी ना मिली तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी, मेरा जिस्म से तन से सर जुदा कर दिया जाएगा, इसलिए मेरे ख्वाजा अब जान की बात आ गई है, आंख में रोशनी दे दे। अब ये दीवाना झूमने लगा है, दीवाना मस्ताना वार होके कहने लगा है, अपनी आंखों में आंसू लेके कहने लगा है, अब कहना था औरंगजेब वापस आ रहा है, इधर आंख में इनकी रोशनी आ गई है। औरंगजेब आगे कहने लगा, ओ नाबीना बता, रोशनी मिली है कि नहीं मिली है? हाथ में तलवार औरंगजेब के है। उस शख्स ने तरफ के कहा, औरंगजेब बादशाह सुनो, तुम्हारे आने से पहले पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने आंख में रोशनी अता कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ से आंख में रोशनी आ गई। हजरत औरंगजेब ने कहा, फिर तू ये बता, तूने 10 दिन 20 दिन महीना दिन से मांगता था, आंख में रोशनी नहीं मिल रही थी, अब तुम कैसे मांगे हो कि आंख में रोशनी आ गई? उसने कहा, हुजूर आपने तो कहा कि मैं उधर से वापस आऊंगा, अगर रोशनी ना मिली तो मैं तुम्हारे गर्दन को उड़ा दूंगा, सर कलम कर दूंगा। अब मैं इस डर से और खौफ से ख्वाजा की बारगाह में मांगना शुरू किया। अल्लाह का करम हुआ, ख्वाजा की इनायत हुई, अल्लाह ने मुझे आंख में रोशनी अता कर दिया। तो मेरे दोस्तों, दिल से मांगना है। देते कौन है? देता कौन है? अल्लाह। दिलाने वाला गरीब नवाज की जात थी। वहां गरीब नवाज के आस्थाने में जाके वो नाबीना दुआ करते हैं, आंख में रोशनी आ गई, ख्वाजा गरीब नवाज का करम हुआ, अल्लाह ने उसको आंख में रोशनी अता कर दिया। तो दिल से अगर मांगेंगे, आज भी किसी बुजुर्ग के आस्थाने पे जाइए, अगर दिल से मांगते हैं तो यकीनन मेरे दोस्तों वो मुरादें जरूर पूरी होती है, क्योंकि अल्लाह का आस्थान, अल्लाह वालों का आस्थाना कभी खाली नहीं होता है। अल्लाह वालों के आस्थाने में जो दिल से अपनी मुराद मांगता है, यकीनन अल्लाह ताला उसके सदके में उसकी मुराद को पूरी फरमा देता है। जब किसी आस्थाने पर, किसी बुजुर्ग के खानका में, किसी बुजुर्ग के दरबार पे जाके कोई मांगता है तो मांगने वाले की शख्सियत नहीं देखी जाती है, जिस आस्थाने पे जाते हैं उस आस्थाने के बुजुर्गों की शख्सियत देखी जाती है, और उनके सदके में अल्लाह ताला मांगने वाले को अता फरमाता है। तो ख्वाजा के दरबार में अपना हो या बेगाना, सबको देता है वो, दाता है अजमेर का, सबको देता है वो, दाता ही है वैसा अजमेर में। मांगने का सलीका होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, आज क्या होता है, माहौल क्या बन गया है, हमारे घर में, आपके घर में या किसी के घर में ज़ईफ माँ बाप है, माँ बाप को नाराज कर देते हैं और फिर खानका का चक्कर लगाते हैं। ज़ईफ माँ बाप को, बुढ़ापे में माँ बाप पहुंचे हैं, इनको नाराज कर देते हैं और फिर खानका के चक्कर लगाते हैं। तो मेरे दोस्तों, खानका का नहीं, खाने काबा का चक्कर लगाओगे तो नहीं मिलेगा। जिसकी माँ जिसका बाप अगर नाराज है तो फिर वो दुनिया में किसी भी खानका में पहुंच जाए, उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती है। माँ की रजा, बाप की, माँ बाप अगर राजी हो तो रब भी राजी रहता है, माँ बाप नाराज हो तो रब भी नाराज होता है। इसलिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है, तो माँ बाप को पहले खुश कीजिए, फिर जिस खानका में मन्नत लेके जाएंगे, जिस खानका में तमन्ना और मुरादें लेके जाएंगे, यकीनन मेरे दोस्तों वो मन्नत है, वो मुरादें हमेशा पूरी होती हुई नजर आएगी।
आज बेटा करोड़पति है, बेटा लाखपति है, बेटे का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, बेटा दिन भर में नाजायज तरीके से 100, 200, 500 रुपए खर्च कर देता है, लेकिन माँ उसकी जो है एक मिठाई के लिए तरस रही है, उसकी माँ जो है एक एक रुपए के लिए तरस रही है, उसकी माँ जो है पेट भर करके एक प्लेट खाना नहीं खा पाती है। तो मेरे दोस्तों, ऐसी माँ नाराज होगी नहीं तो क्या होगी, और जिसकी माँ नाराज हो उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, तुम्हारी मां के कदम के नीचे जन्नत है। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया तुम्हारी मां के चेहरे के नीचे जन्नत है, सर के नीचे जन्नत है, हाथ के नीचे जन्नत है, या कहीं और कोई जगह या कोई शय नहीं बताया, बल्कि बताया क्या, मां के कदम के नीचे जन्नत है। तो मेरे दोस्तों, जिस मां के कदम में यह ताकत है और यह पावर है कि अल्लाह ने जन्नत उस बेटे के लिए उसके मां के कदम के नीचे रख दिया है, तो जिस मां के कदम के नीचे जन्नत है, तो उस मां के चेहरे के नीचे क्या होगा, उस मां के बाल के नीचे क्या होगा, उस मां के हाथ के नीचे क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, इसी जुमले से मां की अजमत को समझिए। मेरे नबी फरमाते हैं कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे मां के कदम के नीचे है। जब कदम में यह बरकत रखी गई है तो चेहरे में कितनी बरकत रखी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कह लोगों, तुम अपने माँ बाप का चेहरा देखा करो मोहब्बत की नजर से। साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इससे क्या मिलेगा। मेरे नबी फरमाते हैं, जो माँ बाप की मोहब्बत से चेहरा देखता है, अल्लाह ताला उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। साहबी रसूल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, एक दिन में अगर हम 100 मरतबा अपनी मां का चेहरा मोहब्बत की नजर से देखेंगे तो हमें कितना सवाब मिलेगा, कितनी नेकी मिलेगी। आका फरमाते हैं, ऐ साहबियों सुनो सुनो, अगर एक दिन में अपनी मां का चेहरा 100 बार देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मां के कदम के नीचे जन्नत है मेरे भाइयों। और एक मां अपने पेट में जब बच्चे को रखती है, कितनी तकलीफ होती है, इसका एहसास है। जब मां के पेट में बच्चा आता है, अब वो मां रात में चैन से सो नहीं पाती है, दिन में ठीक से चल नहीं पाती है, पेट भर खाना नहीं खाती है, तरह तरह की परेशानी है, फिर उस बच्चे को जन्म देती है। और मेरे आका फरमाते हैं कि उसी मां के कदम के नीचे तुम्हारी जन्नत है। आज मां नाराज है, मां नाराज है, बाप नाराज है, तो जन्नत का दरवाजा और जन्नत दोनों अगर नाराज हो गए और वो दोनों नाराज होके चले गए तो फिर मेरे भाइयों ठिकाना अपना देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे आका की हदीस है कि जिसकी मां नाराज हो, जिसका बाप नाराज हो, उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो जाता है। और जन्नत अगर मां नाराज हो तो जन्नत भी नाराज होती है। और जिसकी मां नाराज हो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है। यह हदीस का जुमला है। जिसका बाप नाराज हो, जिसकी मां नाराज हो, कोई इबादत, कोई सजदा, कोई इबादत, कोई तिलावत उसके लिए कबूल काबिल कबूल नहीं है। और जितने सजदे मस्जिद में किए हैं, सारे सजदे मैदान महशर में उस बेटे के चेहरे पे मार दिया जाएगा। किसी सजदे का बदला उसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मां नाराज है। क्यों नहीं मिलेगा? बाप नाराज है। अगर चाहते हैं कि कुरान खानी करते हैं, मिलाद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तिलावत करते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात करते हैं, सदका करते हैं, ये सब हमारा कबूल हो जाए तो अपनी मां को राजी रखो, अपने बाप को राजी रखो। ये दो शय अगर राजी रहेंगे तो फिर हर इबादत आपकी काबिल कबूल है। और अगर ये नाराज हो गए तो कोई इबादत, कोई दुआ आपकी कबूल नहीं होगी। कहते हैं ना कि मेरे लिए दुआ कीजिए इमाम साहब, मेरे लिए दुआ कीजिए नमाजी साहब, मेरे लिए दुआ कीजिए हाजी साहब, मेरे लिए दुआ कीजिए मौली साहब, मेरे लिए दुआ कीजिए हाफिज साहब। यानी तरह तरह, यानी जो भी लोग मिलते हैं सबसे कहते हैं ना मेरे लिए दुआ कीजिए, लेकिन दुआ कहीं कबूल नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? माँ उसकी नाराज है घर में, माँ उसकी नाराज है उसके घर में, उसका बाप उसके घर में नाराज है। तो मेरे दोस्तों, दुआ तुम कहीं कराने मत जाओ। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खानका तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ के कदम के नीचे है। तुम्हारा सबसे बड़ा खानका तुम्हारे घर में है। अपनी माँ से कहो, ऐ मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर दो। अगर वो माँ मचल जाएगी और मोहब्बत से अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआ के लिए अपने हाथ को उठा देगी और कहेगी, मौला मेरा बेटा है फला मुसीबत में मुब्तला हो गया है, मौला इस मुसीबत से निजात अता फरमा, इस कारोबारी में तरक्की अता फरमा। तो मेरे दोस्तों, यकीनन माँ की उठी हुई हाथ का लाज खुदा रखता है और खुदा उसकी दुआ को कबूल भी फरमा लेता है। तो दुआ सबसे पहले कहाँ कराइए? अपने घर में, अपनी माँ से, अपने बाप से, बाद में पीर साहब के पास जाइए, बाद में मौली साहब के पास जाइए, बाद में खानका पहुंचिए, बाद में मदरसा पहुंचिए, बाद में किसी से दुआ कराइए, पहले अपनी माँ से दुआ कराइए। अगर माँ की दुआ कबूल होगी तो फिर सबकी दुआ कबूल हो जाएगी। माँ अगर नाराज घर में है तो दुआ करने वाला खानका का पीर हो या मदरसे का मुफ्ती हो, किसी की दुआ आपके हक में कबूल नहीं होगी। माँ की रजा में, बाप की रजा में रब की रजा है। अगर रब को राजी करना है तो माँ को राजी करो, रब को मनाना है तो बाप को खुश करो। अगर बाप खुश होगा, माँ खुश होगी, माँ राजी होगी, बाप राजी होगा तो रब भी राजी होगा। यानी यूं समझो, रब को मनाना है, रब को मनाना है, रब से मोहब्बत करना है, रब को राजी करना है तो पहले इस दो शय को राजी कीजिए जो तुम्हारे घर में मौजूद है। खुदा फरमाता है, जो अपनी माँ को राजी रखता है, अपने बाप को राजी रखता है, मैं भी उससे राजी रहता हूं। माँ की रजा में खुदा की रजा है, माँ की रजा में खुदा की रजा है, बाप की रजा में खुदा की रजा है। इस दो शय को हमेशा हमेशा राजी रखो मेरे भाइयों, इसलिए कि तुम्हारा वजूद उनसे है, उनसे तुम्हारा कोई वजूद नहीं। तुम उससे आए हो। और अल्लाह ताला ने माँ बाप की अजमत, अहमियत बहुत बताया है और इनका मर्तबा बहुत बुलंद करके बता दिया है कि इसी के कदम के नीचे तुम्हारी जन्नत है। तो मेरे दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा का वाकया है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे। बहुत बड़ी महफिल थी, काफी लोग जमा हो गए थे। तकरीर बहुत बेहतरीन अंदाज में हो रही थी, खिताबत लोग समात कर रहे थे। जब तकरीर खत्म हो गई, लोग चले गए, एक आदमी हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंचते हैं और जाके मुसाफा करते हैं और कहते हैं, हुजूर एक बात बताइए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, मैं बहुत बड़ा शराबी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे, ऐ लोगों, ऐ शख्स ये बता तू करता क्या है? कहा, हुजूर मैं दिन भर शराब पीता हूं, अल्लाह की बारगाह में आज आपकी तकरीर सुना और इससे मेरा दिल मचल गया और खौफे खुदा दिल में बस गया। आज मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूं, क्या हमारी तौबा कबूल होगी? हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे, ऐ शख्स ये बता, शराबी की आदत होती है, शराबी की फितरत होती है कि शराबी अक्सर हमेशा हर दिन घर जो है देर से पहुंचता है। सब लोग घर में पहुंच जाते हैं, तब ये शराबी पहुंचता है। हजरत जुनैद बगदादी के सामने वो शख्स कहा, सब लोग घर में पहुंच जाते हैं, तब मैं पहुंचता हूं। हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे कि शख्स ये बता, जब तू घर लेट से पहुंचता है, ताखीर से पहुंचता है, तो ये बता कि तुम्हारा कोई इंतजार घर में करता है कि नहीं?
कहने लगे हाँ, जब मेरी माँ थी तो जब तक मैं घर पहुंच नहीं जाता वो दरवाजा खोल कर बैठी रहती थी कि मेरा लाल कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा नूरे नजर कब आएगा। अब माँ हयात से नहीं है, माँ का इंतकाल हो गया है, माँ इस दुनिया से चली गई है। तो जब तक मेरे घर में मेरी बहन रहती थी तो वो इंतजार करती थी, उनकी शादी हो गई, वो भी इंतजार करना छोड़ दी। उसके बाद मेरी बीबी कुछ दिन तक इंतजार की, उसके बाद वो भी कहने लगी कि ये शराबी है, कबाबी है, कहीं पड़ा होगा गंदे नाले में, जब होश आएगा आ जाएगा वापस, आज मेरा इंतजार कोई नहीं कर रहा है। हजरत जुनैद बगदादी कहने लगे ऐ शख्स चुप हो जा, तू क्या कहता है, मेरा इंतजार कोई नहीं करता। जब ये सच है कि जब तुम्हारी माँ हयात से थी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जब तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में थी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारी बीबी वो भी घर में इंतजार कर रही थी, वो भी समझ गई कि अब इसका इंतजार करना बेकार है। लेकिन तुम क्या कहते हो, आज मेरा कोई इंतजार कर नहीं करता। नहीं नहीं, ये गलत है। आज भी तुम्हारा रब तुम्हारे तौबे का इंतजार करता है। आज भी अगर तुम तौबा कर लोगे रब की रहमत आज भी जोश में आएगी और तुम्हारी खता को माफ कर देगी। इसलिए कि अल्लाह ताला की रहमत आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब इसने सुना कि अल्लाह की रहमत मेरा इंतजार कर रही है, आज भी मेरे रब मुझे बख्श देगा, तो उसने कहा हुजूर क्या आज मैं अगर तौबा कर लूं हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, हजरत बगदादी कहने लगे कि तुमने क्या कहा कि आज कोई इंतजार नहीं कर रहा है। अरे तेरा रब आज भी तेरा इंतजार कर रहा है, तू पलट के तो आजा, सच्चे दिल से तो तौबा कर ले। उस शख्स ने जब सुना कि हमारी तौबा आज भी कबूल होने वाली है, उस शख्स ने सच्चे दिल से तौबा किया और वो तौबा कबूल हुई और वो शख्स जो शराबी था वो अल्लाह के महबूब बंदों के लिस्ट में शुमार हो गया। तो आज भी सच्चे तौबा की जरूरत है। जितनी जिंदगी गुजर गई बगैर नमाज पढ़े हुए और जितनी आज बची है अल्लाह की चौखट पे आइए और कहिए मौला जितनी जिंदगी गुजर गई है मौला उसी में जो हमने नमाज नहीं पढ़ा है मौला उस नमाज को तू माफ फरमा दे, और जो बच गई है मौला उसे अदा करने की तौफीक दे दे मौला, और जो नमाज कज़ा हो गई है उसे कज़ा पढ़ने की तौफीक दे दे मौला। नमाज पढ़ा कीजिए मेरे भाइयों, मौत किसकी कब आएगी कोई ठिकाना नहीं है, जो जाएगा वो हाथ मलते हुए चला जाएगा। इसलिए अमल ठीक कीजिए ताकि कब्र के मंजिल में पहुंचे तो आसानी के साथ मारे। नमाज किसी भी सूरत में किसी को भी माफ नहीं है। आज लोग सोचता है, बच्चे लोग सोचते हैं बुढ़ापा हो जाएगा तब जाके नमाज पढ़ेंगे, और जमा बूढ़ा लोग सोचते हैं कि कुछ दिन और गुजरेगा तब हम नमाज पढ़ लेंगे। कुछ दिन और गुजरेगा, कई कुछ दिन करते करते आप गुजर गए तब क्या होगा वहां, फिर वहां कोई अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर आप अल्लाह का नेक बंदा है, आप अल्लाह का वली है, कौम के सामने क्यों नहीं आते हैं, कौम को दीन की दावत क्यों नहीं देते हैं, तबलीग का काम क्यों नहीं करते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहने लगे ऐ लोगों मैं क्या जाऊं कौम के सामने, हमारे अंदर 4 बात हमको खाई जा रही है, इस 4 बात से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं कौम के बीच में नहीं जा पा रहा हूं। जिस दिन इस बात से मैं बाहर निकल जाऊंगा तब मैं कौम के बीच में आऊंगा। किसी ने सवाल किया हुजूर वो 4 बात क्या है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि लोगों उस दिन रोजे मिसाक जब अल्लाह ने फरमाया था औलादे आदम से ए लोगों अलस्तो बेरब्बिकुम, ए लोगों बताओ मैं कौन हूं, सारे लोगों की रूह ने सबकी रूह ने अल्लाह को रब तस्लीम किया था, रब माना था,
उस वक्त अल्लाह ने फरमाया आधे लोग जन्नती है, इसकी कोई परवाह नहीं है, आधे लोग जहन्नमी है, लेकिन इसकी भी कोई परवाह नहीं है। हैरत है लोगों में परेशानी में इसलिए हूं कि आधे लोग, रब ने फरमाया आधे लोग जन्नती है तो आधे लोग जहन्नमी है। आपके शायर साहब आ गए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। आइए हजरत भाई, ठीक है ठीक है बैठिए। और हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं कि लोगों, मैं इस बात से परेशान हूं कि जब रब ने फरमाया था औलाद आदम से कि आधे लोग इसमें जन्नती है और आधे लोग जहन्नमी है, मैं परेशान इस बात पर हूं कि जिधर जन्नती कहा था या जिधर जहन्नमी कहा था, मैं किस तरफ था, इसी में परेशान हूं। मैं किस तरफ था इसलिए परेशान हूं कि मेरा शुमार किधर है, मैं जन्नती वाली जमात में था या जहन्नमी वाली जमात में था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं किस जमात में उस वक्त था। लोगों ने कहा हुजूर दूसरी बात क्या है? तो हजरत इब्राहिम बिन अदम ने फरमाया दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से परेशान हूं कि जब मां के पेट में बच्चा बनता है और बच्चा बन के तैयार होता है, उसमें रूह फूकी जाती है, जिसमें तैयार होता है रूह फूकी जाती है। उस वक्त फरिश्ता रब की बारगाह में सवाल करता है, रब से पूछता है ए मेरे रब, इस बच्चे को बदबख्त के तरफ लिख दूं या नेक बख्त के तरफ लिख दूं? मैं परेशान इस बात से हूं कि उस वक्त रब ने मेरे लिए क्या फरमाया था। ऐ लोगों, आप लोगों में से किसी को पता है कि आप जब मां की पेट में थे और रूह फूका गया था, उस वक्त फरिश्तों ने सवाल किया था ए मौला, इसका नाम नेक बख्त में लिख दूं या बदबख्त में लिख दूं? है किसी को पता? आप लोगों में से है? तो फिर इतना नाच कूद क्यों करते हैं शादी ब्याह में? उछल कूद क्यों करते हैं? क्यों नहीं नमाज पढ़ते हैं फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में? अपने पेशानी को सजदों से क्यों नहीं सजाते हैं, जबकि आपको यह भी पता नहीं है कि अल्लाह ने उस वक्त जब आप मां के पेट में थे और रूह फूकी गई थी, फरिश्तों ने सवाल किया था, उस वक्त रब ने आपके लिए क्या कहा, क्या हुक्म दिया था और फरिश्तों ने आपके बारे में क्या लिखा है? इसलिए मेरे भाइयों, ना आपको पता है ना हमको पता है कि आपका नाम क्या, आपका नाम नेक बख्त में लिखा है कि बदबख्त में लिखा है। जब पता नहीं है, आइए सब मिलके वादा करते हैं कि आज से हम मर तो सकते हैं लेकिन नमाज कभी कज़ा नहीं कर सकते। पढ़ने के लिए तैयार है ना आप लोग? आए चचा, आप पढ़िएगा ना। आधी उम्र आपकी गुजर गई है, मुश्किल से 2-4 साल बचे हैं। हम लोग दुआ करते हैं कि मौला अगर 2-4 साल बची है तो 2-4 साल और बढ़ा दे मौला, ताकि इनको ज्यादा इबादत करने का मौका मिल जाए। पढ़ेगा ना? आइए हमसे हाथ मिला लीजिए। आइए आइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, गौस का दामन, खाजा का दामन, नमाज का दामन नहीं छोड़ेगा ना? पक्का। देखिए महफिल में वादा किए हैं, आज से दिल में ये तय कर लीजिए कि हम मरेंगे या जिएंगे लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज का दामन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग भी इस भाई के लिए दुआ कीजिए कि कल से फजर में यह हमारे सामने, आपके सामने नमाज फजर पढ़ के जब सलाम पढ़े और दुआ करे सब कोई मिलके इनके हक में कि मौला ये तेरी चौखट में आ गया है मौला, अब यहां से आगे तेरा काम है मौला, अपनी बारगाह में हमेशा इनको आने का मौका अता फरमा दे मौला। ऐ मेरे दोस्तों, लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो क्या सोचते हैं हम नमाज
نہیں پڑھتے ہیں، یہ لوگ نمازی ہے، یہ لوگ نمازی ہے، یہ لوگ نمازی ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی چوکھٹ میں نہیں جاتے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں نہیں جاتے ہیں، لیکن میرے دوستو جو نماز پڑھتا ہے اللہ کی توفیق اس پر ہے کہ وہ پنج وقت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ لیکن اے میرے دوستو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے ہیں، سر کو سجدے میں نہیں جھکاتے ہیں، وہ اپنے اندر غور کرے کہ اس سے کون ایسی خطا ہو گئی ہے، کون ایسا جرم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی چوکھٹ پر آنے سے روک رکھا ہے، اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو رب جس سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے بڑی اس کو سزا کیا دیتا ہے کہ اس سے نماز کی توفیق کو چھین لیتا ہے۔ کیا؟ رب جس سے ناراض ہوتا ہے، رب جس سے روٹھ جاتا ہے، رب جس سے ناخوش ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی عذاب اس کو کیا دیتا ہے کہ اپنی چوکھٹ پر آنے نہیں دیتا ہے، اور سب سے بڑی اس سے دولت کیا چھین لیتی ہے کہ اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے نہیں دیتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ارے تو کیا پڑھے گا اور تو کیا پڑھے گا؟ جب تک رب کی توفیق نہیں ہوگی کوئی نہیں نماز پڑھ پاتا ہے۔ آج ہمارے اس بھائی پر یقیناً رب کی توفیق ہوئی ہے، اس لیے آج اس محفل میں امجد ماسٹر کے چھت کے اوپر، اور جو امجد ماسٹر نے اپنی بیٹی کی شادی پر اس محفل کو سجایا ہے اور ذکر رسول کر رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، میں سلام کرتا ہوں ماسٹر امجد صاحب کو بھی، اس لیے کہ اس نے اس محفل کو سجا کر کے ایک ایسے انسان کو تیار کیا ہے کہ ہمیشہ ان کا سر رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، سجدے میں جانے والا ہے۔ اس لیے میں ماسٹر امجد سے بھی کہوں گا کہ آپ کی یہ شادی جو ہے، یقیناً جو کل آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے وہ یقیناً قابل قبول ہے۔ سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے آپ شادی کرائیے گا، یقیناً وہ نکاح قابل قبول ہوگا۔ اور یہ ذکر رسول، محفل رسول بھی آپ کی قبول ہے، ذکر رسول آپ کی قابل قبول ہے۔ آپ نے ذکر کیا، ہمارے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مسلم انصاری صاحب اب تک دور بھاگے ہوئے تھے، لیکن ان کے گھر کا کچھ ایک بات بتا دوں، ان کے گھر کا ماحول میں جانتا ہوں۔ ان کا 2 بیٹا ہے، دونوں بیٹا 5 وقت جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے نا۔ اللہ نے یہ توفیق دیا، اور آج سے نہیں، میں اس محلے میں لگ بھگ 12 سال سے اس مسجد میں ہوں، تو 12 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا بیٹا فجر میں بھی پہنچتا ہے، مغرب میں، عشاء میں، ظہر میں، عصر میں، چاہے ٹھنڈی ہو چاہے گرمی ہو یا موسم خراب ہو، پانی برس رہا، پانی گر رہا ہو یا دھوپ گرمی پڑ رہی ہو، ہمیشہ نہ ٹھنڈی دیکھتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے، مسجد پہنچ جاتے ہیں، عصر ہو یا عشاء ہو یا فجر ہو، نماز پڑھتے ہیں۔ تو آج بھی آج سے آپ اپنے دل میں ٹھان لیجئے، ہمارا بیٹا پڑھتا ہے، ہم اس کا باپ ہے تو اس سے پہلے پہنچیں گے۔ باپ کو آگے رہنا ہوگا نا، آپ نہ اس کا باپ ہے، آپ کا باپ وہ نہیں نہ ہے، آپ اس کا باپ ہے، تو جو کام باپ پہلے کرتا ہے تب بیٹا بعد میں کرتا ہے۔ لیکن آپ کا قانون بدلا ہوا تھا، آپ کا بیٹا کر رہا تھا، آپ نہیں کر رہے تھے، لیکن آج آپ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ قرض ہوتا ہے، آج آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ پر قرض ہو گیا کہ آپ ہمیشہ مسجد پہنچا کیجئے گا، نماز پڑھا کیجئے گا۔ میرے دوستو، ہم نے آپ کو تیار نہیں کیا ہے، یقیناً آج رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم آپ پر برسا ہوگا، رحم و کرم کی بارش ہوئی ہوگی، تبھی تو آپ کھڑے ہو گئے، ورنہ بہت سارے لوگ تھے، کوئی تیار نہیں ہوا، آپ تیار ہو گئے۔ یہ اللہ کا کرم آپ پر ہے، اللہ کا فضل آپ پر ہے، اللہ کی رحمت آپ پر ہے، اور میں دعا کروں گا مولا اے پاک پروردگار، ہمارے مسلم صاحب جب تک زندہ رہے، حیات سے رہے، مولا آنے والی بلا کو ٹال دے مولا، آنے والی مصیبت کو دور فرما دے مولا، اور ہمیشہ تو اپنی چوکھٹ پہ اس کو سر جھکانے کا موقع عطا فرما دے مولا، نماز پڑھنے کا موقع عطا فرما دے مولا۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ نماز ایک ایسی دولت ہے
शायर साहब कि कभी किसी को माफ नहीं है, हद बुलूगियत को पार किया, नमाज फर्ज हो गया, चाहे औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, हद बुलूगियत। हाँ बस और 10 मिनट बैठिए इंशाल्लाह, इसलिए कि मुझे अभी दो प्रोग्राम में जाना है मिलाद शरीफ में, इसलिए मैं मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूं। आपके शायर साहब आए हैं, इंशाअल्लाह 1 घंटा इनसे नात सुनिएगा, तब इनको छोड़िएगा। बहुत दिन से दिल में ये तमन्ना थी कि हजरत को कभी ना कभी बुलाएंगे, बहुत दिन से ये दिल में आरजू था, ख्वाहिश थी कि हजरत कभी इस मोहल्ले में तशरीफ लाए। यकीनन आज आ गए हैं। तो इनको देख के मुझे एक शेर याद आया, पढ़ दूं? मैं आ गया हूं दिल में इश्क नबी लिए हुए। आप लोग आए हैं ना? मैं आ गया हूं दिल में इश्क नबी लिए हुए, यानी कल कयामत के दिन जब जन्नती को जन्नत में जाने का हुक्म होगा तो आशिक रसूल जन्नत में पहुंचेंगे, अपने अपने मकाम पर पहुंचेंगे, उसके बाद जन्नत के कोना में बैठ के क्या कहेंगे जानते हैं? मैं आ गया हूं दिल में इश्क नबी लिए हुए, ऐ बहिश्ता बोल तेरा दाम कितना है, ऐ बहिश्ता बोल तेरा दाम कितना है। तो बहिश्ते का दाम क्या जानते हैं? दिल में इश्क नबी, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत हो, यही जन्नत की कीमत है। और मैं अभी बताया था कि जन्नत आपके माँ के कदम के नीचे आपकी जन्नत है, हमारी माँ के नीचे हमारी माँ के कदम के नीचे हमारी जन्नत है। आप अपने माँ को खुश कीजिए, हम अपने माँ को खुश करेंगे, आप अपने बाप को खुश रखिए। ऐ मेरे दोस्तों, आपकी माँ अगर आपसे राजी हो गई ना, ये दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपकी, क्योंकि माँ की दुआ हमेशा कबूल होती है। मेरे भाइयों, अपनी माँ से ज्यादा दुआ कराओ, और जिसकी माँ ज़ईफ हो गई हो, जिसकी माँ बुढ़ापे में पहुंच गई हो, उससे ज्यादा दुआ करो, इसलिए कि उनकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है बेटे के हक में, उसकी औलाद के हक में। इसलिए हर माँ बाप हर बेटे को चाहिए कि अपने माँ बाप को खुश रखे, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करे और उसके साथ बेहतरीन अंदाज में पेश आए। इसलिए कि मेरे भाइयों, कोई भी अच्छी चीज आप खाते हैं तो उसको खाने से पहले अपनी माँ को भी खिलाओ, अपने बाप को भी खिलाओ, तो माँ राजी होगी, बाप राजी होगा, तो माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ राजी होगी, रब राजी होगा, बाप राजी होंगे, बाप राजी होंगे, रब राजी होगा। और जब रब राजी होगा, आपकी नमाज भी कबूल होगी, आपकी फराइज भी कबूल होगी, आप जो इबादत करेंगे वो इबादत भी कबूल होगी। अगर माँ राजी नहीं है तो फिर आपकी कोई इबादत कबूल नहीं है, कोई दुआ कबूल नहीं है। हाँ, मैं दुआ ही पर था, दुआ के बारे में बता रहा था, कुछ बात और बढ़ गई है और कुछ देर में मैं अपनी मुख्तसर अंदाज में अपनी बात को समेट रहा हूं। दुआ कबूल क्यों नहीं होती है जानते हैं? सबसे बड़ा राज हम बताएं, सबसे बड़ी बात आप लोग जानते हैं, बताएं। आपकी भी दुआ कबूल होने लगेगी, हमारी भी, सबकी दुआ कबूल होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, आप सबसे दुआ करके थक जाते हैं, लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं होती है। आपके हक में किसी की भी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? आपकी मां नाराज है, और जिसकी मां नाराज हो उसके लिए उसके हक में कोई भी दुआ करे कबूल नहीं होगी। और कहीं भी किसी भी खानका में जाए, किसी भी मजार पे चले जाए, किसी भी उर्स में शामिल हो, किसी भी पीर के पास चले जाए, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है। उसका तमन्ना, उसकी आरज़ू, उसकी ख्वाहिश पूरी कभी नहीं होगी। क्यों? कि असल जन्नत तो माँ के कदम के नीचे है। सबसे बड़ी खानका उसके घर में मौजूद है, और सबसे बड़ी खानका में बैठने वाली पीरिया को, बैठने वाली नेक खातून को वो नाराज करके किसी और खानका में पहुंचा है। तो मेरे भाइयों, जब तक ये घर में बैठने वाली वह नेक खातून आपसे राजी नहीं हो सकती होगी, तब तक कोई पीर आपसे राजी नहीं होगा। कोई पीर अगर आपसे नाराज हो जाए तो आपके लिए जहन्नम नहीं है, जन्नत ही है, जन्नत का दरवाजा बंद नहीं होगा। लेकिन अगर मां नाराज हो जाए तो जन्नत का दरवाजा भी बंद, जन्नत भी बंद आपके लिए हो जाएगी। इसलिए कि जन्नत
माँ के कदम के नीचे है। और कोई किसी के पास आप जाते हैं, चाहे आलिम हो, मुफ्ती हो, पीर साहब हो, इन लोग भी दुआ करते हैं आपके हक में, दुआ यकीनन कबूल होगी मेरे भाइयों, लेकिन ये हक आप अदा करके जाइए। माँ का हक आप पर क्या है, उस हुकूक को अदा कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआ आपके घर में भी कबूल होगी, मस्जिद में भी कबूल होगी, और कोई पीर साहब कर देंगे, वो पीर की दुआ भी आपके हक में कबूल होगी। मैं बता रहा था, हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहने लगे, लोगों मैं इसी बात से परेशान हूं कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था, शिकम में था, मुझे बनाया गया, रूह डाला गया, उस वक्त फरिश्तों ने पूछा, मौला इस बच्चे को नेक बख्त लिख दूं या बदबख्त लिख दूं। इसलिए मैं परेशान हूं कि उस वक्त फरिश्तों को मेरे रब ने मेरे हक में क्या जवाब दिया होगा। मेरा नाम नेक बख्त में लिखा है कि बदबख्त में लिखा है, मैं इसी बात से परेशान हूं। तो मेरे भाइयों, आपको नहीं मालूम है, हमको भी नहीं मालूम है कि आपका नाम कहाँ है, मेरा नाम कहाँ है। इसलिए मेरे भाइयों, आज से सच्चे दिल से तौबा कीजिए कि मौला जितनी नमाज़ें जिंदगी में कज़ा हो गई उसे माफ फरमा दे और अदा करने की तौफीक दे दे, और जितनी बची है मौला इसे पढ़ने की तौफीक दे दे मौला। हजरत इब्राहिम बिन अदम से लोगों ने कहा, हुजूर दो बात तो समझ गए, तीसरी बात क्या है? क्या तीसरी बात यह है कि जब मलकुल मौत आते हैं तो रूह कब्जे करते हैं, उससे पहले रब की बारगाह में पूछता है कि मौला इसकी रूह निकाल करके काफिरों की जमात में रख दूं या मोमिनों की जमात में रख दूं। मैं परेशान इस बात पर हूं कि जब मलकुल मौत आएगा, मेरी रूह निकालेगा, उस वक्त रब की बारगाह में सवाल करेगा, ए मौला इसकी रूह निकाल करके जन्नतियों की जमात में रख दूं, मोमिनों की जमात में रख दूं या काफिरों की जमात में रख दूं। मैं परेशान इस बात से हूं कि उस वक्त अल्लाह ताला मेरे हक में क्या फरमाएगा, क्या कहेगा उस वक्त मेरा रब। मेरी रूह कहाँ रखी जाएगी, मोमिनों की जमात में या काफिरों की जमात में? इसी बात से मैं परेशान। ऐ मेरे दोस्तों, आप लोगों में से किसी को पता है जब आपकी रूह निकलेगी, सवाल करेगा फरिश्ता कि मौला इसकी रूह कहाँ रखूं, तो रब क्या फरमाएगा पता है? आपकी रूह जन्नती ईमान वालों की जमात में रखी जाएगी या काफिरों की जमात में रखी जाएगी? कहां रखी जाएगी पता है? नहीं पता है, हमको भी नहीं है, किसी को खबर नहीं है, किसी को पता नहीं है, खबर नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मत समझिए कि हमारे बाप इंतकाल कर जाएंगे, हमारे खानदान के लोग इंतकाल कर जाएंगे, हमारे दादा दादा चचा फूफा नाना खालू कोई भी इंतकाल करेंगे, उनके नाम से मस्जिद में लोटा दे देंगे, मस्जिद में कुरान शरीफ दे देंगे, मस्जिद में जाय नमाज दे देंगे, मस्जिद में मुसल्ला दे देंगे, मस्जिद में पंखा लगा देंगे। बाप हमारा बख्शा जाएगा, दादा हमारा बख्शा जाएगा, परदादा हमारा बख्शा जाएगा। ये ख्याल जहन से निकालिए। अगर नमाज कज़ा है, नमाज नहीं पढ़े हैं, तो यह आपका देना कोई काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, यह आप पर फर्ज नहीं है, यह आपने सवाब का जो काम किया है यह नफली इबादत है। मस्जिद में पंखा लगाना, मस्जिद में चंदा देना, मस्जिद में लोटा देना, मस्जिद में जाय नमाज देना, यह नफली इबादत है, नफली इबादत और नफल सवाब है। ये सवाब नफल का मिलता है, लेकिन फर्ज नमाज है आप पर, फर्ज रोजा है आप पर। अगर अल्लाह ने दौलत दी है, हज फर्ज है तो हज कीजिए, ज़कात फर्ज है तो ज़कात दीजिए, इन कामों को किया कीजिए। ये काम अगर आप करेंगे तो फिर वो मस्जिद में लोटा देना भी काम आएगा, मस्जिद में पंखा देना भी काम आएगा, मस्जिद में चटाई देना भी काम आएगा, मस्जिद में जाय नमाज देना भी काम आएगा, मस्जिद में चंदा देना भी आपका काम आएगा। तो ये काम कब आएगा? ये मुनाफा है मेरे भाइयों। मस्जिद में जो भी आपने लगाया यह मुनाफा है, मुनाफा। असल मुद्दल रकम आपकी नमाज है, नमाज। और मैं उस व्यापारी को मूर्ख समझता हूं
बेवकूफ समझता हूं, बुर्बक समझता हूं। जो व्यापारी अपनी असल मुद्दल रकम गंवा दे और रेच की लेकर के हिसाब जोड़ने लगे कि मुझे इतना नफा हुआ है, इतना नफा हुआ है, इतना मुनाफा हुआ है, आप लोग उस व्यापारी को क्या कहेंगे? मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए में दुकान किया, एक महीने में दुकान उसका खत्म होते 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 बिल्कुल खत्म हो गया। 2-4 रुपए की सामान बेचा, रेस की लेके बैठा कि आज हमको कितना मुनाफा हुआ, आज हमको कितना मुनाफा हुआ, और जो रकम लगाया था मोटा वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये व्यापारी मूर्ख है कि नहीं है? ये व्यापारी बुर्बक है कि नहीं है? इसलिए मेरे दोस्तों, आप सब काम करते हैं और नमाज को छोड़ देते हैं, तो नमाज ही आपकी असल मुद्दल रकम है, और नमाज ही आपको मैदान महशर में सबसे पहले पूछा जाएगा। अगर नमाज सही है तो हर काम आपका काम आएगा। मस्जिद में जो आप लगाए हैं, कब्रिस्तान में जो आप लगाए हैं, मदरसे में जो आप दिए हैं, सब काबिल कबूल है। अगर नमाज नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। आप कुरान खानी करते हैं, मिलाद करते हैं, चंदा देते हैं, ये सब काम कब आएगा पता है? जब तक आपकी नमाज पूरी नहीं होगी, फर्ज पूरा नहीं होगा। फर्ज पूरा कीजिए तब नफल के तरफ जाइए, तो फिर जाय नमाज देंगे, उसमें जितने लोग नमाज पढ़ेंगे हर आदमी के तरफ से सवाब मिलेगा। और जो आप लोग देते हैं ऐसा नहीं कि सवाब नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो कुछ आपने मस्जिद में लगाया, जो भी कब्रिस्तान में चंदा दिया, जो भी मदरसे में चंदा दिया, जो भी गरीबों में तकसीम किया, सबका बदला मिलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर एक नमाज आपसे जानबूझ करके छूट गई है तो करोड़ों साल पहले जहन्नम में जलना होगा, तब जाके इसका नफा तुम्हें पहुंचेगा। बताओ क्या कीजिएगा? नफा के तरफ ध्यान दीजिएगा कि असल मुद्दल रकम पे आइएगा, असल काम पे आइएगा। जो इंसान जानबूझ करके एक वक्त की नमाज को छोड़ देता है, इसका नाम जहन्नम के उस दरवाजे पे लिखा जाता है जिस दरवाजे से कल कयामत के दिन उसे जहन्नम में डाला जाएगा, उसी दरवाजे पे लिख दिया जाता है। अब हुजूर फरमाते हैं कि ये नाम कब तक लिखा रहता है? जब तक कि वो कज़ा वाली नमाज को अदा नहीं कर लेता है, तब तक ये नाम वहां लिखा रहता है। अगर वो इंसान फला दिन की नमाज कज़ा किया, उसका नाम वहां लिखा गया है। अगर उम्र भर में वो कज़ा कभी अदा कर लेता है तो वहां से नाम मिटाया जाता है, उस दरवाजे से नाम को हटाया जाता है। और अगर अदा नहीं किया तो उसी दरवाजे से उसको डाला जाता है। अब बताइए, जिंदगी भर नमाज छोड़ के जाइएगा, और छोड़ के जाइएगा तो किसका क्या बिगड़ेगा? जलेंगे आप, तड़पेंगे आप, सांप आपको डसेगा, बिच्छू आपको डसेगा, आग में जलाए आप जाएंगे, किसी का कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, कल कयामत का दिन होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। सगी माँ अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर देगी, कोई किसी का वहां मददगार नहीं होगा। जिसका अमल सही होगा वही फिर कामयाब है, और जिसका अमल सही नहीं फिर उसको जहन्नम में जाना होगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, ऐ लोगों, मुझे खबर नहीं है कि जब मैं माँ के पेट में था और जब मैं माँ के पेट में था और फरिश्तों ने पूछा था कि अल्लाह इसका नाम इसको बदबख्त की तरफ लिख दूं या नेक बख्त की तरफ लिख दूं, मुझे खबर नहीं है कि मेरा नाम किस तरफ लिखा गया है। और जब मलकुल मौत आएंगे, रब की बारगाह में सवाल करेंगे, मौला इसको नेकों की जमात में रख दूं या काफिरों की जमात में रखूं, उस वक्त अल्लाह ताला पता नहीं क्या इरशाद फरमाएगा मेरे हक में। मुझे यही बात खाई जा रही है। लोगों ने कहा, हुजूर और आगे की बात बताइए। और हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, ऐ लोगों, आगे की बात यह है कि कल कयामत का दिन होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, ऐ खाकियों, ऐ पापियों, दुनिया घूम करके आ गया है, आयश करके आ गए हो तो एकदम छट के अलग हो जाओ मोमिनों की जमात से। उस वक्त मोमिनों की जमात से लोगों को छांट के अलग किया जाएगा। उस वक्त के लिए मैं सोचता हूं कि जब रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, एकदम छट के अलग हो जाओ नेकों की जमात
जमात से, ईमान वालों की जमात से, मोमिनों की जमात से, उस वक्त मैं किधर रहूंगा, इसी बात से मैं डरता हूं। आज लोग सोचते हैं हम कोई अमल नहीं करेंगे अभी साहब जन्नत में पहुंच जाएंगे। उस वक्त रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ दुनिया घूमने वालों, आज ताकत किसकी है, बादशाहत किसके हाथ में है। अब तो तुम दुनिया घूम के आए हो, फरमाबरदारी नहीं किए हो, नमाज़े कज़ा करके आए हो, रोजा कज़ा करके आए हो, हज को छोड़ के आए हो, ज़कात नहीं दिए हो, तो मोमिनों की जमात से तुम भी छट के अलग हो जाओ। उस वक्त क्या करेंगे, क्या हाल होगा वहां जब कहेगा रब कि ईमान वालों की जमात से, जन्नतियों के जमात से छट के अलग हो जाओ, क्या हाल होगा मेरे भाइयों। इसलिए मेरे दोस्तों हमेशा हमेशा नमाज पढ़ा कीजिए और रमजान का महीना आए रोजा भी रखा कीजिए। मेरे दोस्तों आज जानते हैं मुआशरे में माहौल क्या हो गया, हट्टा कट्टा मोजा मोटा ताजा इंसान 11 महीना सुकून की जिंदगी गुजारता है और जैसे ही रमजान का चांद दिखाई देता अब ये जानबूझ के बीमार हो जाता है, गैस का गोली रख लेता है, शुगर का गोली रख लेता है और लोगों को दिखाता देखो हमें शुगर हो गया है, हमें प्रेशर बढ़ गया है, हम बीमार हैं, देखो ये मेरे पास दवाई है। डॉक्टरों ने कहा कि रोजा मत रहना, इसलिए हमने रोजा छोड़ दिया है। मेरे दोस्तों 11 महीना दवाई नहीं खाता था, 11 महीना शुगर नहीं था, 11 महीना इसका प्रेशर नहीं बढ़ता था, 11 महीना इसको परेशानी नहीं थी, रमजान का चांद दिखाई दिया, खाने के लिए बीमारी शुरू हो गई। उस वक्त जब रब पूछेगा बंदा रोजा रख के आया है, क्या दिखाओगे। अल्लाह करे जो लोग जानबूझ करके रोजा छोड़ता है इतनी बुरी और सख्त बीमारी में उसे मुब्तला कर दे कि उसी बीमारी में वो दुनिया से चले जाए। अरे मुसलमान है तो फिर बीमारी का बहाना क्यों बनाते हैं। अरे मेरे दोस्तों पहले के लोग रमजान के लिए तमन्ना करते थे कि रमजान का महीना कब आएगा, रमजान का महीना कब आएगा, और ईद की चांद दिखाई देता था लोग रोने लगते थे, लोग कांपने लगते थे कि इतना अच्छा महीना, बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना हमसे दूर हो गया है, पता नहीं फिर अगले साल ये महीना हमें मिले कि ना मिले, हमें मिले कि ना मिले, हम इस महीने को पाए कि ना पाए। और आज के लोग रमजान का महीना आता है बुखार शुरू हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है और तरह तरह की बीमारी में मुब्तला होते हैं। असल मेरे दोस्तों ये शख्स बीमार नहीं है बीमार, बल्कि इन्होंने अपने मन का शौकी बना लिया है, अपने आप का नाटक एक समझ लिया है और उसी नौटंगी में वो कहता है कि लोग हमें बुरा भला ना कहे, लोग हमें बुरा भला ना कहे। ऐ मेरे दोस्तों लोगों की नजर से छुपा के क्या करोगे, ये लोग तुम्हें क्या करेंगे नहीं करेंगे, कुछ करने वाले नहीं है। अरे बचना है तो उस रब की पकड़ से बचो, जब रब पकड़ेगा और कहेगा ऐ मेरे बंदे अब मेरी अदालत में खड़े हो जा, बता कितने दिन तुमने रमजान के महीने में रोजा रखा, उस वक्त क्या हाल होगा। एक एक रोजे के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों रमजान का महीना मिले खुशी से दिल से इस महीने की अजमत को समझो और इज्जत करो और रोजा रखा करो। ये नहीं कि बहाना बना ले, बहाना बनाइएगा तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो आपका जब कब्र में जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक जुमला कह के मैं अपनी तकरीर को खत्म और समेटने की कोशिश करता हूं। आपसे पहले आपका बाप था कि नहीं था? कितने लोगों का बाप आपसे पहले था? हाथ उठाइए तो बस। अरे आप लोग बाप का बेटा है ना, आपसे पहले आपका बाप था कि नहीं था? वो लोग इंतकाल किए हैं, किसी का नहीं भी किए होंगे, किसी का किए हैं। चलो जिसका कर गए इंतकाल, ये बताओ आप उसका बेटा है, उसके कब्र में आपने क्या क्या ले जाके रख दिया है मालूम? किसी ने कुछ नहीं रखा है शाहिद साहब। और यही हाल आपका भी होगा मेरे भाई।
آپ کا بھی بیٹا آپ کے گھر سے کوئی دولت نکال کے آپ کے قبر میں نہیں رکھے گا، آپ کو بھی تنہا رہنا پڑے گا، آپ کے باپ کو بھی تنہا رہنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہاں جائیں گے، وہاں کی تیاری کر لیجئے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور چند دنوں کے لیے آپ یہاں پر ہیں، وہاں کی تیاری کیجئے جہاں اکیلے ہمیشہ رہنا ہے۔ آنکھ کھلے گی، دیکھیں گے چاروں طرف مٹی 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 ہے، وہاں آپ کا عمل آپ کا ساتھ دینے والا ہے۔ آپ نے نماز پڑھا ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ نے زکوٰۃ دیا ہے، آپ نے صدقہ دیا ہے، آپ نے خیرات کیا ہے، مسجدوں میں چندہ دیا، مسجدوں میں چٹائی دی، مسجدوں میں جائے نماز دیا، مصلی دیا اور مسجدوں میں پنکھا لگایا، قبرستان میں چندہ دیا، مدرسوں میں چندہ پہنچایا۔ یہی عمل آپ کا نیک ہے اور یہی عمل آپ کا قبر میں کام آنے والا ہے۔ اور جو چھوڑ کے آپ گھر میں دولت مر جائیں گے، وہ آپ کے گھر میں چھوٹ جائے گا، ان میں سے 1 روپیہ آپ کو نہیں ملنے والا۔ تو آپ تیاری کیجئے گا نا۔ اللہ نے آپ لوگوں کو بیٹا دیا ہے، شادی کرائیے گا نا سنت مصطفیٰ کے طریقے پر، جہیز لے کے نہیں۔ جہیز لینا کیا ہے؟ شاعر صاحب کہہ رہے ہیں حرام ہے، آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حرام ہے۔ حرام کھائیے گا؟ حرام کا گوشت کھائیے گا کوئی؟ جہیز لینا بھی حرام ہے۔ جس نے جہیز لیا سمجھو کہ اس نے حرام کا گوشت کھایا۔ کھائیے گا؟ حرام کھانا کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وہی جو کالا چھوٹا سا رہتا ہے۔ تو ایسی دولت کھائیے گا تو سمجھیے کہ اسی کا گوشت کھائے۔ تو جہیز لینا حرام ہے، حرام۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، مولا اے پاک پروردگار، تو نے بہت بڑی نعمت دیا ہے، بیٹا جیسی عظیم دولت دیا ہے، یہ بیٹا بڑا ہوگا، اس کو پڑھاؤں گا، دین کا تعلیم دوں گا، دین کا سبق دوں گا، اور یہ بیٹا زمان ہوگا، سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے اس کی بارات گھر سے نکالوں گا اور ادھر سے کنیز فاطمہ بنا کے دلہن گھر میں لاؤں گا۔ کیجئے گا نا؟ سنت مصطفیٰ کے طریقے پر اپنی بچی، اپنے بیٹا، اپنے بیٹی کی شادی کیجئے، یہ شادی قابل قبول ہوتی ہے اور اس نکاح میں برکت بھی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، برکت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس نکاح میں برکت ہوتی ہے وہ نکاح کون سا ہے جانتے ہیں؟ جو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے کرتا ہے اسی میں برکت ہے، اور جس نے عمل سنت مصطفیٰ پر چھوڑ کر کے نکاح کرتا ہے، اس دن سے لے کے مرتے دم تک اس نکاح سے فتنہ ہی پھیلتا ہے، پریشانی ہوتا ہے۔ کبھی بہو سے ساس پریشان، کبھی ساس سے بہو پریشان، کبھی بیوی سے شوہر پریشان، کبھی شوہر سے بیوی پریشان، کبھی بچے سے ماں پریشان، کبھی ماں سے بچے پریشان۔ کیوں میرے بھائی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ شادی جو انہوں نے کیا ہے سنت کو چھوڑ کر کے نکاح کیا ہے۔ میرے نبی کی سنت کیا جانتے ہیں؟ میرے نبی کی سنت کیا ہے جانتے ہیں؟ شادی کرو، پسندیدہ سنت ہے۔ میرے نبی نے خود شادی کی، لیکن تاریخ میں کوئی دکھا سکتا ہے کہ میرے نبی نے جہیز میں کچھ مانگا ہو؟ صحابہ نے شادی کی، کئی شادی ان لوگوں نے کیا ہے، کوئی 4، کوئی 3، کوئی 2، کوئی 1۔ آج کے دور میں ایک کو نبھا نہیں پا رہے ہیں، اور اس دور میں 4 شادی کرتے تھے۔ آج ایک کیوں نہیں آپ سے نبھایا جاتا ہے؟ شرط بس اتنی سی ہے کہ آپ نے سنت کو چھوڑ کر کے نکاح کیا، اس لیے ایک آپ سے نہیں سنبھلا جاتا ہے۔ اگر سنت پر آج بھی عمل کر کے آپ نکاح کریں گے تو 1 کیا 4 بیوی آپ کے لیے جائز ہے، 4 کو آپ سنبھال سکتے ہیں۔ کسی صحابی نے لڑکی والوں سے جہیز مانگا ہو؟ کوئی تاریخ میں دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی کتاب ہے کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، جہیز کے نام پر کسی صحابی نے کچھ نہیں لیا۔ جب صحابی نے نہیں لیا تو صحابی کے قدموں سے لگنے والے دھول کے برابر بھی نہ ہم ہیں نہ آپ ہیں، تو پھر آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ شادی میں جہیز مت مانگیے، نچنیا مت بلائیے،
अगर नचनिया बाराती वाला लेके आता ना, इतना मारिए कि नाक नक्शा थोबरा सब बिगड़ जाए और अपने मोहल्ले में पहुंचे तो मोहल्ले के लोग कहे कि ये गुंडा मवाली चोर चक्कार कहां से उठ के आया है। बनाइए एक ऐसा कानून अपने समाज में कि जिसके भी घर में बाराती में नचनिया आएगा उसके घर में उसके शादी में शामिल नहीं होंगे। काहे नहीं करते हैं? करना होगा मेरे भाई, दीन के खातिर जीना होगा, दीन के खातिर मरना होगा। ये काम आप लोगों पर जरूरी है। आज माहौल क्या होता है, लोग रात भर मिलाद करता है, लोग सुबह उठ के कुरान का नहीं करता है और दूसरे दिन बेटा की शादी में बाराती में नाचने वाले लड़के को लेके जाता है, नाचने वाली लड़की को लेके जाता है। तो फिर इस मिलाद से, फिर इस कुरान खानी से आपको क्या फायदा पहुंचा? उससे अच्छा ना आप कुछ नहीं करते, नाचते हुए जाते दिखाते हुए। तो नाचना हराम है कि नहीं है? नाचते हुए जाइएगा। या अल्लाह, जितने लोगों ने कहा कि हम अपने बेटे की शादी में नचनिया नहीं बुलाएंगे, इन लोगों को हर ऐब से पाक फरमा दे, हर बला से इन लोगों को बचा ले। और मौला, जो अपने बेटे के शादी में नचनिया लड़का लड़की को लेके जाएगा, नाचते हुए जाएगा, हर बला उसके घर में अता कर दे। ले जाइए, अब तो हम मस्जिदों में भी यही दुआ करने वाले हैं। अब ले जाइएगा, ऐसी बला में आप मुब्तला हो जाएंगे कि आप क्या, आपके आने वाले 7 नस्ल तक यही कहते रहेंगे कि हम कभी भी अपनी बेटी की शादी में, अपने बेटे की शादी में नाचने वाले लोगों को शामिल नहीं करेंगे। जहेज मांगेगा, जहेज का माल खाना क्या है? हराम है। और हराम किसको कहते हैं आप लोग खुद जानते हैं कि हराम का खाना क्या है। तो आज के बाद हराम का नहीं खाएंगे। हजरत इब्राहिम बिन आदम कहते हैं कि लोगों, मैं इस बात से परेशान हूं कि बरोज़े महशर रब फरमाएगा वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों, मोमिनों की जमात से अलग हो जाओ। तो इब्राहिम बिन आदम कहते हैं कि मैं उस वक्त किस जमात में रहने का मुझे हुक्म दिया जाएगा, इसलिए मैं परेशान हूं कि मैं नेकों की जमात में रहूंगा, ईमान वालों की जमात में रहूंगा, या फिर गुनहगारों की जमात में रहने का हुक्म मिलेगा। इसलिए मैं परेशान हूं। तो मेरे दोस्तों, किसी को कोई पता नहीं है कि किस जमात में रहेंगे, इसलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, मौला हमेशा नेकों की जमात में शुमार फरमा, नेकों को जमात में रहने की तौफीक दे मौला, और आने वाले आफात मुसीबत को दूर फरमा मौला। और हमारे अमजद साहब की बेटी की शादी है और निकाह होने वाला है मौला, इस निकाह को सुन्नत के तरीके पर करने की तौफीक दे मौला, और अपने हबीब के सदके में इस शादी को कबूल फरमा मौला। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से खत्म कर रहा हूं, इसलिए कि मुझे 8 बजे कहीं और जाना था, सबाहात हो गया है, अभी 2 मिलाद शरीफ में शामिल होना है। अब आपके सामने हमारे जमात के बेहतरीन शायर, जिनका नाम हजरत हाफिज नदीम रजा फैजी है, मैं इनकी बारगाह में दस्तक देता हूं बस इस शेर के साथ। वह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुशरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आइए नदीम साहब, अब एक